Hello everyone. Hello everyone. Good evening. Namaste everyone. Wish you all a very happy Diwali in advance. Have a very happy and safe Diwali. So for today live, we are going to discuss about a very special thing. So what do you think? What defines a modern man? Who is a modern man? We will get to know about that in few minutes. Our guest tonight is a true example of a modern man, a man of modern India, progressive India, a true example to the society, a true role model to the society. So today in tunes with Pankaj Raj and his best half, better half, Rupali. I'm going to add them. Just give me a minute. Pankaj, I have sent you invitation to join. Hello, Pankaj. Welcome. Hello Ritu. How are you? Looking great. I'm going to add I'm Rupali also now. Just give me a minute. Rupali also. She is also available. कैसी चल रही है दिवाली की तैयारी? So we have just started actually, and Hello. Hello, Rupali. How are Hello. you? Good कैसे evening. हैं आप? Good Fine. evening. ओके तो पहले स्टार्ट करते हैं। पंकज बताइए कुछ अपने बारे में। so as I'm you know, I'm by by profession profession an an engineer, engineer, and and yes, after yes, so after many so struggle, I many have struggle, joined. I have joined. Uh, you Uh, can say a you good can say service. a good service. Uh, Uh, and at present, I and am at in present, I government am of in India, government of India, and and nothing special nothing actually. special actually. I find I find I am very much I am very much low standard. low I mean, low standard, I profile mean low person, profile and person. very fortunate that you have Fortunate that called you us, have called us, and and it's it's anything wrong? Anything? anything wrong? Anything? आपकी आवाज Sound is बहुत vibrating. ब्रेक Sound हो is रहा है। vibrating. Oh, oh, oh. Oh, ho, ho. Uh, Uh, let me let check me my check my network. network. Is it okay? Is it okay? यस। So हाँ it's पंकज very, So it's बताइए। very we are very much privileged that you have called us in your live in tune with Neetu. आई गेस नेटवर्क लैग आ रहा है। I think there is some network issue. एक काम कर, हाँ ओके, आप दोनों साथ में आ जाइए। पंकज आप साथ में आ जाइए रूपाली के, तो दैट इको Okay. भी नहीं होगा। वेरी गुड। एक सेम दैट्स बेटर। ओके या एक्चुअली उसमें शायद इको भी हो रही थी आवाज।
Now it's okay, Neetu? Yes. हाँ बोलिए. हाँ. So it's actually we are very much privileged that you have called us in your live in tune with Neetu, and you are doing a actually very good thing. I have seen your previous both the live interaction we would say, and you are choosing some special person. Uh, of course, here you have made one mistake. I think I believe. No, no, it's not a mistake. Everyone will come to know who you are. Okay, चलिए. Uh, as you are a government employee, so you might not get time to join in my live, but still you join. That is a privilege for me. चलिए. पंकज, आप मुझे एक सोसाइटी के रोल मॉडल की तरह दिखते हैं. यू हैव सेट एन एग्जाम्पल टू द सोसाइटी with your deeds, your actions. तो जैसा कि हम जानते हैं, मैं जानती हूँ कि आपकी लाइफ में एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंस हुआ था वेयर यू लॉस्ट योर वाइफ एंड आप डिप्रेशन में चले गए थे. सो आपको पता कैसे चला दैट यू आर इन डिप्रेशन? कैसा फील, कैसे कैसे पता चला आपको? हाँ, एक्चुअली जैसा आपको मालूम ही है कि मेरी वाइफ डिप्रेशन में ही थी और उसने एक वेरी अनफॉर्चुनेट एक कदम उठाया था, और दैट ruined my happiness that day, and till that time I was very much happy, and that day only that my happiness ruined. So मैंने एक्चुअली इसे काफ़ी नज़दीक से देखा था. सो मैंने खुद पे एनालाइज किया कि मैंने अपनी एक्टिविटी पे एनालाइज किया कि मैं क्या कर रहा हूँ. सो मुझे रात में नींद नहीं आती थी, और इवन दो कि मैं दिन भर कुछ ना कुछ करता ही रहता था, तब भी रात में नींद नहीं आती थी, कमी आती थी, या मतलब बहुत कम आती थी. फिर मैं अचानक से चिल्लाते हुए उठ पड़ता था. कभी कभी आज भी होता है, लेकिन मुझे वो याद नहीं, मुझे हो जाता है कभी कभी, बट मुझे अभी ऐसे भी याद नहीं रहता कि किस बात से मैं उठ गया. एंड मुझे ऐसा लगा कि मैं खाना वगैरह पर मैं ध्यान नहीं देता था. फिर मुझे कई चीज़ों पे नाराज़गी ज़्यादा होती थी. कभी कभी कुछ चीज़ें मैं पटक भी देता था. सो ये मुझे मुझे अपने आप में लगने लगा कि मैं किसी और जा रहा हूँ, और डेफिनेटली एट सम पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि लिव इट, मतलब छोड़ देना चाहिए सारी चीज़ें. तो लेकिन उस समय मेरे पेरेंट्स, जो कि मुझे बहुत ही प्यार करते, तो उन पे नज़र जाती थी, तो मैंने कुछ उस पे अपने आप को संभालने की कोशिश की, नो डाउट. और इस बीच फिर क्या हुआ कि मैंने फिर एमटेक के लिए अप्लाई किया था. मेरे ऑफिस ने मुझे एमटेक के लिए नॉमिनेट किया है बॉम्बे में. एंड आफ्टर सम टाइम मेरी माँ का डेथ हो गया. सो विद इन 1 year आई लॉस्ट माई वाइफ ऑल्सो एंड मदर ऑल्सो. सो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो रखा था, और मुझे रियलाइज हो गया कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, और मैं ड्रास्टिक कदम उठा सकता था उस वक्त, बट मेरे पेरेंट्स थे, उन पे मेरी नज़र जाती थी, और वो चीज़ें मैं नहीं किया. फिर मैंने वहाँ पर डॉक्टर से मुलाकात की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मुलाकात की. तो साइकोलॉजिस्ट ने मुझे उनके कुछ क्वेश्चनरीज होते हैं, उन्होंने मुझसे टिक करने को कहा. मैंने वो सोच समझ कर किया कि तो उन्होंने बताया कि यस, यू आर इन वेरी मच डिप्रेस्ड मोड. सो सी रेफर्ड मी टू साइकियाट्रिस्ट. सो देयर टू थिंग जो मुझे इस दौरान पता चली थी, कि एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एक साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जो कि मेडिकल फील्ड से होते हैं. साइकोलॉजिस्ट आपको आपके साथ बातचीत करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद ऐसा उन्हें लगता है कि आपको दवा की ज़रूरत है, तो वो दवा नहीं लिखते, उसके लिए आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है. सो उनके कहने पे मैं उधर गया, उन्होंने 2-3 दवाइयाँ लिखी. फिर मैं जो कॉलेज में था, तो उन्होंने ये मुझे बताया कि आप अपने आप को बिजी रखो और लोगों के साथ रहो. कभी भी ऐसा लगे तो आप सीधा हॉस्पिटल में चले आओ.
सो मैंने सोचा कि मुझे दवाई नहीं खानी है, मुझे और कुछ करना है। बट मैं यहाँ पे ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि अगर डॉक्टर ने आपको दवा खाने को कहा है तो आप मत खाइए, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने खुद से सोचा कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने आप को समझ लिया है कि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है और जिसे कि दूर करना चाहिए। सो सो कैसे दूर करना है वो भी तो मैंने कुछ नहीं सोचा था, बट ये मैंने सोच लिया था कि हाँ, दूर करना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैं सुबह में काफ़ी साइकिलिंग, फिर वॉकिंग वगैरह करके अपने आप को काफ़ी बिजी रखने लगा, और कॉलेजेस में रहता था, और पूरे समय मैं कॉलेज में ही रहता था। पढ़ाई करूँ ना करूँ, बट मैं कॉलेज में और लाइब्रेरी में रहता था, लोगों के साथ रहना शुरू किया। हालांकि बातचीत तो मैं नहीं करता था, वो लोग भी मुझसे नहीं देख करते थे, क्योंकि उन्हें दिखाई देता था ये तो गुस्सा रहता है हमेशा, मतलब नाराज रहता है, तो लोग मुझसे इंटरेक्शन उतना तो नहीं करते थे। बट मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स थे जो मुझे काफ़ी मोटिवेट करने की कोशिश करते थे। डेफिनेटली उसमें से एक आप भी हैं, जो काफ़ी आपने भी कई बार मुझे फ़ोन करके मोटिवेट करने की कोशिश करी थी, और कोशिश करी थी नहीं, कोशिश की थी। और ये जो मैंने जो चीज़ें की है उसमें नो डाउट आपका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। वहाँ पे भी एक एक जैसे आईआईटीज में जो लड़के जाते हैं, आपको भी पता हो, वो भी काफ़ी छोटे लड़के रहते हैं, और वो भी काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हैं। तो वहाँ पे उनके काउंसलर होते हैं, जो कि उनकी फैकल्टी के ही कोई टीचर होते हैं, जिन्हें जिन्हें इस तरह की कुछ एक्सपीरियंस होती है। तो मुझे एक लेक्चरर ने कहा कि आप उनसे जाकर मिलिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो, दवाई खाना नहीं खाना वो तो डॉक्टर ने बोला, ये आपको सोचना है, लेकिन मुझे लगता है कि आप दवाई मत लो। और आप जो मैंने बताया कि आप, उन्होंने भी बोला कि आप काफ़ी अपने आप को बिजी रखो, इतना बिजी रखो कि रात में बिस्तर पे जाते ही आपको नींद आ जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं था, बट फिर भी मैंने अपने आप को रखने की कोशिश की, और यस, कुछ हद तक अपने आप को रिकवर Exactly किया right, मैंने। right, yeah. मतलब एक ड्यूरिंग डिप्रेशन मेडिकेशन और साइकोलॉजिस्ट आई मीन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के अलावा लोगों को अपने आप को बिजी रखना चाहिए, ये एक्चुअली सजेशन यस, हम एज अ सजेशन पास कर ये सकते हैं हालांकि लोगों काफी मुश्किल अपने आप में रियलाइज करना कि यू आर इन डिप्रेस मोड, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह की डिजाइन की हुई नहीं है कि आपकी आपके डिप्रेशन को वो सीरियसली एक तो नहीं लेते, और दूसरा आपको कई बार आपको पागल ही वो करार कर देते हैं। सो लोग खुलकर नहीं जाते, लेकिन मैंने चूंकि बहुत ही नजदीक से देख रखा था, बहुत ही नजदीक से, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे करना चाहिए जिससे जिससे खुद को कम से कम बचाए रखो। क्योंकि मुझे को। मेरे पेरेंट्स की नज़र आती थी, माँ के जाने के बाद फादर भी काफ़ी की भी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो रखी थी, और वो मेरी तरफ से चिंतित रहते थे, तो वो मुझे दिखाई देता था एक्चुअली, वो भी एक कारण था। खुद को डिप्रेशन से एक्चुअली लोगों को अगर कुछ कुछ ऐसा एबनॉर्मल सा कुछ फील हो, एबनॉर्मल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, रात आई मीन डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन जो हमारा है या नॉर्मल बिहेवियर, उससे थोड़ा कुछ डिफरेंट फील हो रहा है तो हमें खुद को एनालाइज करना चाहिए कि हम डिप्रेशन में तो नहीं है। वो रियलाइज करना ही सबसे बड़ी बात है एक्चुअली में। और आपके लास्ट लास्ट लाइफ वाले में वो मैडम ने कहा था, इट्स ओके टू बी नॉट ओके समटाइम्स। सो एक्चुअली ये चीजें मुझे काफी पहले समझ में आ गई थी बातें। तो मैंने उस पर निश्चित रूप से काम किया। राइट, ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने डिसाइड खुद से ही किया कि मुझे डिप्रेशन से बाहर आना है बिकॉज यू हैड सीन समवन डिप्रेस्ड, और आपको पता था कि कैसे क्या होता है, तो आपने डिसाइड किया और आपने काउंसलिंग के बाद और जब आप खुद को बिजी रखने लगे तो आप काफी हद तक बाहर आए भी। डेफिनेटली यस। डेफिनेटली। सो उसके बाद आपने सोचा आपकी दोबारा शादी करना चाहिए, आपने एक डिसीजन लिया मूव अहेड करने के लिए। आप एक बहुत बड़ा लॉस था आपकी वाइफ का गुजर जाना, एंड उसके बाद आपने सोचा कि एक अपनी लाइफ को मूव ऑन करना चाहिए एंड दोबारा शादी करने के बारे में आपने सोचा। और जब आपने दोबारा शादी के
बारे में सोचा तो आपने एक क्राइटेरिया रखा जो कि मुझे भी पता था कि आप एक विडो से शादी करना चाहते हैं हु ऑलरेडी हैज किड्स। सो आपके दिमाग में ये क्यों आया, मतलब आपने ऐसा क्यों सोचा, क्या थॉट था आपके दिमाग में कि आपने ये क्राइटेरिया रखा और उसी क्राइटेरिया के साथ आपने सर्च किया अपनी वाइफ के लिए। क्राइटेरिया के लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं काफ़ी देर मुझे शादी करनी है, बट सही बताऊं तो मैंने अपने फादर के लिए ये डिसीजन लेने की सोची। फिर मैंने एनालाइज किया, मैंने सोचा कि क्या आगे क्या। सो सिमिलर माइंडसेट वाले के साथ अगर रहते हैं आप तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। वो आपकी पोजीशन को वो भी समझते हैं और मैं भी उनकी पोजीशन को समझ सकता हूँ। और रही बात बच्चों की, तो एक बच्चे एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करेंगे जो हम दोनों को नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अ, तो और बहुत बच्चे सुंदर, मुझे ये बात एकदम दिल को छू लेने वाली बात बोली आपने, बोलिए तो प्लीज। हाँ। तो बच्चे मुझे मतलब हमेशा से ही बच्चों से लगाव रहा है, तो मैंने ये क्राइटेरिया लिया। और मुझे मेरा बहुत ज्यादा कुछ खास उसमें क्राइटेरिया में कुछ बहुत ज्यादा नहीं था। मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने डाइवोर्सीज को नहीं देखने की कोशिश की, क्योंकि आई डोंट नो कि क्या रीजन है उनके डाइवोर्स का। हो सकता है वो सामने वाले सही हो, बट वो मेरे साथ फिर से दोबारा चीजें नहीं हो जाए, डाइवोर्स वाली चीजें। तो वो मैंने वो क्राइटेरिया नहीं रखा। मैं उसमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता कि डाइवोर्स उन्होंने किया क्योंकि। सो ये मुझे ऐसा लगा कि सिमिलर माइंडसेट वाले अगर हो तो ज्यादा अच्छे से हम एक दूसरे को समझ सकेंगे और आगे आएंगे। और इस पॉइंट पे मुझे आज के डेट में लगता है कि इन्होंने, रूपाली ने काफी, मतलब काफी इन्होंने हालांकि इनके सामने मैं कभी भी इनकी इनकी बड़ाई नहीं करता, इनको कभी भी नहीं करता, बट इन्होंने मेरे लाइफ को एक न्यू डायमेंशन दिया डेफिनेटली। और बच्चों का काफी बड़ा रोल है इसमें, कोई शक की बात नहीं। उन्होंने, और बच्चे डेफिनेटली शुरुआत में हम दोनों के बीच में ब्रिज ही थे। और अ, उस ब्रिज को हम दोनों ने तय किया और खुद काफी नजदीक हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। बहुत बहुत सुंदर, वेरी और नाइस। और बच्चों दूसरी ने बात ये, ब्रिज का काम किया और एज अ फिर से सदाबहार और ब्यूटीफुल बना दिया। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहूंगा कि मेरे लिए ये डिसीजन बिल्कुल मतलब डिफिकल्ट नहीं था। डिफिकल्ट रूपाली के लिए था वो डिसीजन। बच्चों के साथ आना, बच्चों के लिए एक फादर का जो कि हमारी सोसाइटी में नहीं कह सकते कि क्या होता है, तो उनका डिसीजन, मुझे तो लगता है कि मेरा तो कोई डिसीजन सही मतलब क्या कहते हैं उसे, टफ कोई डिसीजन मेरा टफ नहीं था। टफ तो मुझे रूपाली का ही डिसीजन लगता है, इसमें कोई शक नहीं। और इन्होंने कैसे डिसाइड किया ये वो बेटर बता पाए। राइट राइट। सो एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारी सोसाइटी में, जो इंडियन माइंडसेट है लोगों का हमारी सोसाइटी में। आप हमेशा देखिएगा, whether a boy is a widower or a divorcee, he looks for either an unmarried girl or a divorcee, but मोस्टली वो मतलब ऐसी लड़की चाहते हैं जिनके बच्चे ना हो, मतलब ये सारी क्राइटेरियाज के साथ ढूंढते हैं। एंड आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है लाइफ सोसाइटी के लिए कि आपने रखा कि आई मीन द अदर वे अराउंड होता है एक्चुअली, कि लड़कियां शादी करती हैं लड़कों से जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं। राइट, ये बहुत देखने को मिलता है कि लड़के की के बच्चे हैं, उनकी वाइफ नहीं है, एंड लड़कियां अनमैरिड और widow, they get married to a man like that. But the other way around जो आपने किया, आप दोनों ने किया, वो देखने को बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, जो कि वन ऑफ द केस है। एंड आई फील सो हैप्पी टू नो यू, टू हैव बीन सो क्लोज टू यू ऑलवेज। और आप लोगों की हैप्पीनेस मैंने, आप लोगों ने कैसे जब शादी किया, कैसे आगे बढ़े, मैंने शुरू से ऑब्जर्व किया, देखा। And I feel really happy, and it's an example set to the society. पढ़ते हैं
मैं इसमें मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि राइट। जब मैंने आपको बताया था कि मैं मैरिज कर रहा हूं तो आपने काफी आप काफी खुश हुए थे और आपने काफी इनकरेज किया था कि दैट्स गुड एक्चुअली। और रूपाली को भी काफी आपने क्या कहते हैं उसे, वेलकम किया था। वेलकम किया। Yes. वेलकमिंग हार्ट से वेलकम किया था। एंड ओके सो उस डिसीजन से तो ऑफ कोर्स आप बहुत खुश हैं, राइट? आपकी आज बॉन्डिंग के बच्चों के साथ कैसी है ये बताइए। में अगर कहेंगे तो डेफिनेटली उस समय तो मैं वो कहते हैं ना कि एक समझौता टाइप से ही होता, बट वो वो आज के डेट में एकदम मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन बिल्कुल सही था। और रूपाली बिल्कुल बहुत ही ज्यादा उसने मुझे मेरे लाइफ में नई डायमेंशन दी और इसने काफी इनकरेज किया मुझे बाकी सारी चीजों में। इसमें कोई शक की बात नहीं। बच्चे की जहां तक बात है, बच्चों ने थोड़ा भी समय मुझसे ऐसा नहीं लगाया है जिसमें कि मेरे तुरंत ही वो करीब आ गए। ये इनके पालन पोषण क्यों कह सकते हैं। और तुरंत ही बच्चे हमारे मेरे क्लोज आ गए और आज आप देखकर कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते कि वो बच्चे मतलब कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। और मतलब काफी क्लोज है। मैं मेरे पास कोई वर्ड नहीं है बच्चों के लिए। उन्होंने इतना मुझे प्यार दिया, इतना ज्यादा प्यार दिया है, उतना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। मैं उस लायक हूँ नहीं हूँ, बट उन्होंने मतलब बढ़कर प्यार दिया मुझे। दोनों बच्चे एकदम मुझसे लिपटे रहते हैं, बहुत ही प्यार दिया। मैं मेरे पास एक्चुअली में वर्ड वर्ड बच्चों के लिए नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, वेरी नाइस, वेरी लवली, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। ओके सो अब हम थोड़ा कुछ रूपाली से पूछते हैं। द लवली रूपाली हु जिसने मेरे अच्छे दोस्त के लाइफ को इतना खूबसूरत बनाया। सो वेल रूपाली बताइए, आपने जब पंकज से शादी करने के लिए डिसीजन लिया, आपने क्या सोचा, क्या थॉट था आपके मन में? क्यों ये डिसीजन लिया कि आपको पंकज से शादी करना चाहिए? एक्चुअली में क्या है कि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद में एक साल मैं अहमदाबाद में रहती थी और जगह का बहुत फर्क होता है। और मैं अगर किसी और शहर में रहती तो शायद ये डिसीजन नहीं लेती। बट वो थोड़ा सा ओपन माइंडेड लोग हैं, मेरे आसपास बहुत थे। इवन मैं विडो थी, मेरे दो बच्चे थे, तब भी मेरे पास शादी के प्रपोजल आए थे, मतलब मेरे इन लॉज की तरफ से कि बहुत कम एज है और तुम्हारी पूरी एज है, अब उम्र पड़ी है और बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको एक फैमिली चाहिए और सेटअप करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये वहाँ के लोगों की सोच और बहुत सारा सपोर्ट भी था इस तरह का। बट यही है कि मुझे भी एक सेकंड चांस था, और सेकंड चांस मतलब कोई रिस्क नहीं ले सकती थी क्योंकि मेरे पास दो बच्चे थे, उनके लिए मुझे देखना था। इसलिए ठीक है, मैंने कहा चलो मैं सोचती हूँ। मेरी फ्रेंड ने, एक्चुअली मैं उसका नाम दूंगी, मेरी फ्रेंड ने प्रोफाइल बनाया था, हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। तो प्रोफाइल बनाया और क्राइटेरिया मतलब जो पंकज का था, और फिर मैं देखती थी, सर्च करती, एक्सप्लोर करती रहती थी कि मतलब किससे। और पंकज का प्रोफाइल मैंने पढ़ा, जो इन्होंने अपनी डिटेल्स लिखी हुई थी वो मुझे काफी इम्प्रेसिव लगी और थोड़ी एक्चुअल लगी कि ये मतलब फ्यूचर में और अच्छा साथ हो सकता है। और मैंने एक्चुअली में मास्टर्स किया हुआ है साइकोलॉजी से। तो सेम थिंग्स मेरे साथ भी हुई। लाइफ पार्टनर के जाने के बाद ये सारी चीजें होती ही हैं। अपने आप को बिजी ही रखना होता है। मेरे पास दोनों बच्चे थे, सुबह मॉर्निंग स्कूल था मेरा, सुबह 5 बजे उठना और रात 11 बजे तक मेरी सारी एक्टिविटी चलती रहती थी। और मुझे भी नींद नहीं आती थी। तो फैमिली डॉक्टर थे, तो साइकेट्रिस्ट, तो उन्होंने मुझे पिल्स सजेस्ट की थी। तो एक दो बार ली, उसके बाद मुझे लगा नहीं, ये अब इस तरफ नहीं जाना है मुझे, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ी हुई थी तो ये सारी चीजें मुझे पता थी कि अब मुझे कैसे उससे कोप अप करना है। तो वो सब चीजें काम आई और बच्चों के साथ। और तो बस। आपको थोड़ा कभी डर लगा कि बच्चों को के साथ मैं जा रही हूँ शादी करके, अगर हाँ, वो अच्छे नहीं निकले,
तो वो एक नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा कह सकते हैं विश्वास और थोड़ा सा इतना इतनी लाइफ है, और वो जो 2 साल मैंने अकेले बिताए, तो बहुत सारे बिजनेस फैमिली से मैं हूँ, तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलना, बहुत तरह के लोग, कैसे कैसे लोग बिजनेस में तो होते हैं, तो मार्केट बिजनेस, और तो एक एक्सपीरियंस हो चुका था लोगों को पहचानने का। जहां तक मुझे लगता है कि मैंने पंकज को जानने में मेरे से कोई भी गलती नहीं हुई, तो वो सारा एक्सपीरियंस और मेरी साइकोलॉजी पढ़ना मेरे काम आया। और बाकी तो माता का आशीर्वाद रहता ही है। तो मैं जबकि मिली भी नहीं थी, ये डिसीजन मैंने ले लिया था दिसंबर में, और फरवरी हमारी शादी हुई और फाइनल कर दिया था, और पंकज फिर अहमदाबाद आए थे मिलने के लिए, और वो फाइनल डिसीजन था, उसमें 99% हमारा फिक्स था। तो मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन सही था और कोई रिस्क नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरे लिए एकदम हाईली रिस्क पर थी। मैं कुछ मतलब कुछ खो नहीं सकती थी, पूरी बच्चों की जिंदगी डिपेंड करती है उन चीजों पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा डिसीजन। अंडरस्टैंडिंग वो सेम चीजें कि डिवोर्सी से तो मुझे भी शादी नहीं करनी थी, वो मैंने पहले ही बोल रखा था घर पे, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हुए हैं आसपास डिवोर्स केसेस जो जिस तरह से होते हैं। तो वही चीज है कि जिसने दर्द सहा होगा वही मेरा दर्द भी समझ सकता है, तो इसलिए मैं ये डिसीजन लिया। ब्यूटीफुल डिसीजन, ब्यूटीफुल। आप दोनों को हीरा मिला, पंकज को आप पंकज को। ऐसा तो नहीं बोला, ओके, मुझे एक्चुअली 3 हीरे मिले। अब आपकी लाइफ कैसी है रूपाली? अच्छी चल रही है, जैसे चलनी चाहिए, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है हमारे में, मतलब सब होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एक बहुत जरूरी होता है, और एक्चुअली में इतने मैच्योर होने के बाद में ये सब चीजें डेवलप हो ही जाती हैं धीरे धीरे करके। और बस दिन बहुत जल्दी जल्दी बीत रहे हैं, अच्छे हैं। अच्छा, आपने ये एक सोसाइटी के लिए मैसेज होगा ये बात। आपने जब दोबारा शादी की तो सबसे ज्यादा आपको एनकरेज और सपोर्ट किसने किया कि आपको दोबारा शादी करनी चाहिए? सबसे ज्यादा सपोर्ट किनका मिला? एक्चुअली में हमारा समाज थोड़ा अभी भी बहुत पीछे है, और मैं जिस फैमिली को बिलोंग करती थी, हम लोग राजस्थान से, तो राजस्थान में तो अभी भी बहुत ज्यादा मतलब कुरीतियां जो हैं अभी भी चली आ रही हैं। तो फैमिलीज तो रिश्तेदार तो मेरे से एकदम कट ऑफ हो गए कि रूपाली ने ये क्या किया। बट मेरी फ्रेंड सपोर्ट, जो मेरे स्कूलिंग फ्रेंड्स थे, उनका सपोर्ट मुझे फुल था। मॉरल सपोर्ट मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स का ही ज्यादा मिला। फिर धीरे धीरे करके फिर रिलेटिव जुड़ते गए कि नहीं, फिर पंकज को जैसे जैसे उन्होंने देखा, फोटोज में जैसे पता चलता रहता है उनको, या फिर हम कभी मिले, तो उनको लगा कि नहीं, ये रूपाली का एक अच्छा डिसीजन था, अभी ये खुश है। लेकिन समाज के लिए तो ये डिसीजन आज भी समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। ये एक एग्जाम्पल सेट किया आपने, और समाज को हम यही कहना चाहेंगे, आपकी ब्यूटीफुल लाइफ, टचवुड को देखकर लोगों को सीख लेना चाहिए कि कहीं अगर लाइफ रुकी है तो उसे आगे बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इतनी खूबसूरत लाइफ है, एंड टचवुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप दोनों को देखकर। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपको पंकज में सबसे अच्छा क्या लगता है? हाँ, ये सोचना पड़ेगा शायद। सभी कुछ अच्छा है, क्या नहीं अच्छा लगता है ये ढूंढना पड़ेगा मुझे। ओके, क्या नहीं अच्छा लगता? मेरा सवाल ही गलत था। अच्छा चलिए बताइए, क्या नहीं अच्छा लगता है? नहीं, ये ढूंढना पड़ेगा, ये मैं बता नहीं सकती ऐसे। अच्छा। एक्चुअली ओके। मैं मजाक में बोलती भी हूँ ऐसे कि अगर ये लड़की होते ना, इनके लिए रिश्तों की ना लड़के वालों की लाइन लग जाती, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल लाइफ ऐसा सगुण जो लड़कियां होती ना पुराने टाइम की, जो चली आ रही इमेज की, मुझे ऐसी बहू चाहिए। तो खाना बहुत अच्छा, कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, घर का रख रखाव, बच्चों की केयरिंग, और मतलब बाहर भी जाओ तो मतलब पूरा सेटअप, घर ऐसा नहीं लगता है कि किसी मतलब किसी की सिंगल मेल पर्सन का घर है। तो मतलब सभी कुछ
और परफेक्ट, ढूंढना मुश्किल है क्रिएटिविटी। परफेक्ट। ओके, अच्छा एक बात बताइए, आपका ये मैंने गार्डन देखा है फोटोज में, इंस्टाग्राम पे भी, वीडियो में मैंने देखा है गार्डन का। तो ये इतना सुंदर गार्डन किसने बनाया है? पंकज का क्रेडिट जाता है या आपको जाता है क्रेडिट? आइडिया मेरा था। एक्चुअली में हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते, तो क्वार्टर के पीछे घर से ज्यादा बड़ी जगह ऐसी जंगल जैसी पड़ी थी। और जब मैं यहाँ 16 में आई तो मैं देखती थी डाइनिंग टेबल से लगी हुई विंडो है, तो मैं देखती थी ये इतनी सारी जगह है और मुझे यहाँ गार्डनिंग करनी है। तो फिर पंकज का पूरा सपोर्ट रहता है। एक्चुअली में प्लांटेशन का शौक पंकज को भी बहुत है। तो फिर गार्डन को साफ करते करते और हमने खुद से ही पूरा डेवलप किया है। गड्ढे करते थे, हाथों में छाले पड़ जाते थे। और वीकली हम लोग वीकेंड पे नर्सरी जाते थे, जो मतलब कि काफी बड़ी बड़ी जो नर्सरी होती है वहां से प्लांट्स लेकर आना हमारी ये हॉबी बन गई थी। हम लोग हर वीकेंड पे निकल के प्लांट्स लेकर आते थे, और सैटरडे और संडे फिर गड्ढे लगा के और प्लांट्स लगाते थे। और सुबह शाम पानी देना और सब कुछ 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 क्रिएटिव करना, टायर्स कटिंग और ऑल थिंग्स। तो काफी डिफरेंट टाइप का गार्डन है, ऐसा गार्डन देखने को नहीं मिलता है। टायर्स से फिर कुछ ब्लू ब्लू कुछ वो सब। मैं लोगों को बोलूंगी पंकज की प्रोफाइल पे जाकर उनके गार्डन की वीडियो जरूर देखिएगा। और पंकज, आप अपने गार्डन की फोटोज और अपलोड कीजिएगा। हाँ बिल्कुल करूंगा। मुझे मतलब आइडिया बिल्कुल इनका था और मुझे एक साथ देने की आदत है तो मैं बस साथ दे दिया करता हूँ। और आइडियाज तो निश्चित रूप से रूपाली के होते हैं, और उसमें मैं थोड़ी सी अपनी भी अपना भी कुछ डाल देता हूँ, तो दोनों मिलकर और भी हो सकता है कि, और देखने वालों की आंखों पर भी निर्भर करता है, और आपने उस नजरिए से देखा है इसको तो डेफिनेटली अच्छा अच्छा होगा फिर। यस, इट्स ब्यूटीफुल। खूबसूरत, जिनका माइंडसेट खूबसूरत होता है वो अपने आसपास की हर चीज को खूबसूरत बना देते हैं। आपका माइंडसेट इतना प्रोग्रेसिव है, इतना, एक्चुअली यू बोथ आर अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ द स्मार्ट इंडिया, द पीपल ऑफ स्मार्ट इंडिया, द स्मार्ट माइंडसेट। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड स्मार्ट माइंडसेट, द प्रोग्रेसिव माइंडसेट, इसी को कहते हैं। एंड आई होप, आई विश बोथ ऑफ यू a very happy future together, a very happy life together. आप कुछ बोलिए जाते जाते। पंकज, आप और रूपाली दोनों ही गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो we can end this if you could sing few lines with that beautiful note. सरप्राइज दे दिया मैंने। सोच लीजिए एक आध मैं मिनट। एक एक लाइन सुना सकता हूँ। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। Very nice, beautiful, beautiful. Wish you all very happy Diwali. Those people, all the viewers who joined the live, wish you all a very happy Diwali in advance, and thank you all for joining. Thank you, Nitu, थैंक यू। and for inviting us, and happy Diwali to you and your family and all the viewers. Thank you, thank you. Bye. बाय। Namaskar.